Thank you, Shikha. The first T20I did turn out to be quite a cliffhanger. How the numbers stack up ahead of the second game, that is tonight's game, and who are the players to watch out for? Let's cast a glance. We'll start with the skipper Rohit Sharma. Well, how he has fared in total and against New Zealand in particular. In the previous game, he fell short of his half century, but in total 4 half centuries against New Zealand and in fact 24 overall half centuries to his name. And now moving on to KL Rahul. Well, then he has played 7 T20Is against New Zealand. His highest being 57. In the previous match did not manage to contribute much, but a strike rate of 138 against New Zealand for KL Rahul. Rishabh Pant, now the strike rate there overall 122 does not do justice to what he is capable of. But then he has been improving for quite some time now, and those numbers are bound to change. He has played 5 T20Is against New Zealand. Suryakumar Yadav, again strike rate would be in focus when we talk about Suryakumar Yadav. A strike rate of 160 in the T20Is that he has played for India, but particularly against New Zealand. Now his highest score came in the previous game against New Zealand. 62 is what he managed in the last game played a day before. And we talk about some other Indian batters. So Suryakumar Yadav, we've already cast a glance on his numbers. Now he's just played 9 innings so far. He was also a part of India's World Cup campaign. In total, 243 runs is what he has scored. Shreyas Iyer, well then he has scored a total of 555 runs in his 30 T20 internationals against New Zealand. His numbers are 187 in total, his highest being 58 unbeaten back in 2020, the early part of that year. He was quite phenomenal in New Zealand against New Zealand, and that's why some impressive numbers there. His strike rate has been 123 against New Zealand. In the previous game, we saw that he did get a start, he did get his eye in, but could not finish the task for the team. Ishan Kishan, just one match against New Zealand. That was that clash in the World Cup where he got to open, and Rohit Sharma came down later, and his strike rate was 50. Could not manage to contribute much in that game. But all in all, अगर कुल उनके नंबर देखें तो 4 मैचेस खेले हैं भारत के लिए और 133 का स्ट्राइक रेट है. क्षमता रखते हैं बड़े शॉट्स लगाने की लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ईशान किशन. और इसके अलावा ऋषभ पंत की भी बात करेंगे हम, बाकी भारतीय बल्लेबाजों की भी बात करेंगे. दूसरे विकेट कीपर ऋषभ पंत, इनके भी नंबर्स काफ़ी फिनोमिनल रहे, इनके बारे में हमने ऑलरेडी जिक्र कर रखा है. तो आगे भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि हम गेंदबाजी की बात करेंगे. भुवनेश्वर कुमार पिछले मैच में इंडियन टीम के लिए देखने को मिले. वर्ल्ड कप में भी उनकी कुछ प्रदर्शन आए, इंजरी से कम बैक कर रहे हैं, तो वो पुरानी धार उनकी गेंदबाजी में नहीं दिख रही. लेकिन कुल मिला के इनके नंबर्स देखें तो मैचेस 53 T20Is इंडिया के लिए खेले हैं. इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 5 पर रहा है, 5 for 24. इकोनॉमी काफ़ी इकोनॉमिकल 6.90, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 for 24 है इनके बेस्ट परफॉर्मेंस. रविचंद्रन अश्विन जब से कम बैक किया है, शानदार धुआंधार फॉर्म में दिखे हैं. 8 विकेट कुल निकाले हैं 4 मैचेस में. 2 भले ही नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले हों, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी, और पिछले मैच में अपने आखिरी ओवर में 2 विकेट निकाल कर दिया. बेस्ट फिगर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 for 23, और ओवरऑल जो बेस्ट है वो काफी माइंड बॉगलिंग है. 4 for 8 इनके बेस्ट फिगर्स है. इकोनॉमी कुल 6.83 की है रविचंद्रन अश्विन की. इसके अलावा गेंदबाजी में दीपक चहर की बात करेंगे. पिछले मैच में एक्सपेंसिव रहे. एक ही T20I मुकाबला खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि पिछला मुकाबला था. 1 for 42 इनके फिगर्स रहे, काफी रन इन्हें पड़े. लेकिन कुल मिलाकर अगर T20I में इनके नंबर्स देखें तो बेस्ट जो है 6 for 7, दैट रियली स्टैंड्स आउट. अक्षर पटेल पिछले मैच में विकेटलेस जरूर रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ एक इनका जो प्रदर्शन है 2 for 20 का, वो काफी इंप्रेसिव था. और इसके अलावा कुल मिला के इनके नंबर्स देखिए 3 for 17 इनके फिगर्स है. इकोनॉमी 6.95 की, काफी इकोनॉमिकल बॉलर. और रविचंद्रन अश्विन के साथ तो इनकी जोड़ी कुछ खासी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आती है. मोहम्मद सिराज की अब बात करते हैं. मोहम्मद सिराज जो इनफैक्ट बहुत लंबा गैप रहा था 2017 के बाद, जब पिछले मैच में T20I मुकाबला खेला इंडिया के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 2 मैचेस खेले हैं. 1 for 39 इनका बेस्ट फिगर है, बट ओवरऑल फिगर्स देखें बेस्ट 1 for 39, इकोनॉमी 11.68, बट ही हैज इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली since the time he played in 2017, so those numbers are bound to change. And now we cast a glance at the New Zealand players and how they have fared so far, और क्या उनसे expectations रह सकते हैं. न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं, पिछले मुकाबले में काफ़ी क्लोज मुकाबला दिया था,
आखिरी में मैच को काफी एक्साइटिंग बना दिया था। हाईएस्ट स्कोरर पिछले मुकाबले में रहे थे मार्टिन गप्टिल 70, जो उनका स्कोर आप देख रहे हैं वो इंडिया के खिलाफ उनका बेस्ट परफॉर्मेंस पिछले मैच में ही आया था। इससे पहले एशिया में स्ट्रगल करते हुए थोड़े नजर आए थे, लेकिन वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स लगातार इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी हैं। कुल स्ट्राइक रेट 136 का, इंडिया के खिलाफ 124 का। इन टोटल T20 आईज में 3217 रन इन्होंने बनाए। 2 शतक भी इनके नाम है। एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं, और ये नंबर्स बताते हैं कि अपने दिन पर मैच का रुख पूरी तरह से पलटने की भी क्षमता रखते हैं, और इसीलिए पिछले मुकाबले में इनकी विकेट का गिरना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब बाकी बल्लेबाजों की बात करते हैं। डैरिल मिचेल जब से ओपन करना शुरू किया है न्यूजीलैंड के लिए, तब से धुआंधार परफॉर्मेंसेस दी हैं। हालांकि पिछले मैच में डक पे जरूर आउट हो गए थे, लेकिन कुल मिला के इनके नंबर्स देखें तो 356 रन इन्होंने बनाए हैं। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का वो मुकाबला आपको याद होगा जब 49 इनका हाईएस्ट स्कोर था, 110 रन इंडियन टीम बना पाई थी। शानदार प्रदर्शन इनके तरफ से रहा था डैरिल मिचेल की तरफ से चेस करते हुए, लेकिन उससे पहले या उसके बाद यानी पिछले मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन कुल हाईएस्ट इनका 72 है, वो उनका सोल 50 है, और स्ट्राइक रेट कुल T20 आईज में 138 का रहा है डैरिल मिचेल का। और अब बाकी हमने 2 ओपनर्स की तो बात कर ली। मार्क चैपमैन पिछले मैच में नंबर 3 पर आए थे, शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में, और आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर इनका 63 पिछले मुकाबले में ही भारत के खिलाफ आया था। और कुल मिला के इनके नंबर्स पे देखें तो 31 मैचेस इन्होंने खेले, 118 की स्ट्राइक रेट है। पिछले मुकाबले में 50 गेंदों में 63 रन की अपनी ये पारी खेली थी, और कुल इन्होंने 250 जड़े हैं, अनबीटन रहे थे। इससे पहले जो उनका हाईएस्ट स्कोर है उसमें पिछले मुकाबले में तो खैर आउट हो गए थे। ग्लेन फिलिप्स की अब बात करते हैं। ग्लेन फिलिप्स इंडिया के खिलाफ इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले नहीं हैं। 4 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 11 इनका सबसे अधिक स्कोर है और 11 रन ही बना पाए। बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी भी इनको प्रॉबेबली नहीं मिलती है। 91 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन देखें तो 1 शतक भी इनके नाम है, और कुल 611 रन बनाए हैं ग्लेन फिलिप्स ने। अब टिम साइफर्ट की बात करते हैं। भारत के खिलाफ तो प्रदर्शन करने में थ्राइव करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। कुल 9 मुकाबले खेले हैं भारत के खिलाफ, 292 रन इन्होंने बनाए हैं। 84 इनका जो बेस्ट स्कोर है वो भारत के खिलाफ ही आया था। 153 का स्ट्राइक रेट भारत के खिलाफ रहा है। अब न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे अभी जो कप्तान है टिम साउदी की, कैसा प्रदर्शन उनका रहा है। तो टिम साउदी के नंबर्स भारत के खिलाफ और कुल भी देखें तो काफी इंप्रेसिव रहे हैं। भारत के खिलाफ कुल 14 मैचेस खेले हैं, T20 आईज में 12 विकेट निकाले हैं, बेस्ट 3 for 17 के इनके फिगर्स हैं, और ओवरऑल 91 मैचेस खेले हैं। बहुत सारा तजुर्बा इनके पास है, बेस्ट 5 for 18 इनका परफॉर्मेंस रहा है। थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे रहते हैं, लेकिन विकेट्स भी अपनी टीम को निकाल के देते हैं, और शुरुआत में अपनी स्विंग गेंदबाजी के साथ लगातार परेशान करते हैं अपने स्विंगिंग डिलीवरीज के साथ। अब स्विंग की बात की तो दूसरे जो स्विंग बॉलर हैं उनकी भी बात करेंगे। लेफ्ट आर्म स्विंग पेसर ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं। भारत के खिलाफ काफ़ी सारे विकेट्स निकाले हैं, जो भी मैचेस खेले हैं उसमें 5 मैच खेले हैं, 11 विकेट निकाले हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस उनका 4 for 37 रहा है। ओवरऑल 42 मैचेस खेले हैं और 61 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं, 4 for 34 बीइंग हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। लॉकी फर्गुसन वर्ल्ड कप में तो नहीं खेल पाए थे, बिकॉज पहले मुकाबले से पहले एक बड़ी इंजरी हो गई थी, लेकिन वापसी की इस सीरीज में भारत के खिलाफ कुल 3 मैचेस खेले हैं। अपने एक्सप्रेस पेस से परेशान करते हैं बल्लेबाजों को। इनके बेस्ट फिगर्स रहे 2 for 22 इंडिया के खिलाफ, और ओवरऑल 5 for 21। टोटल 14 मैचेस खेले हैं, जिसमें 24 विकेट अपने नाम किए। मिचेल सैंटनर पिछले मुकाबले में आते ही 1 विकेट निकाल कर दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में इनको इंट्रोड्यूस कराया गया था। 14 मैचेस कुल भारत के खिलाफ खेले हैं, उसमें 13 विकेट निकाले हैं। वर्ल्ड कप के भी मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया था, रन नहीं बनाने दिए थे। 4 for 11 इनकी बेस्ट प्रदर्शन अब तक रहा है, और इकोनॉमी 7.09 का रहा है। और अब आगे बात करते हैं टॉड एस्टल की। पिछले मुकाबले में जब रेस्ट किए गए थे सोडी, तो इन्हें खिलाया गया था। काफ़ी कुछ नहीं कर पाए थे, कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे, बट कुल देखें तो 5 मैचेस खेले हैं। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है 4 for 13 का। इकोनॉमी रही है 8.92 की। कुल जितने T20 आई मुकाबले खेले हैं उसमें तो खैर ये तो रहे प्लेयर्स that you can watch out for, that you'd expect them to do well. That's all the time we have on Stat Zone, because it's over to Shikha. She'll help us find out what our experts make out of these numbers.